ویلکم بیک۔ الوداع امتیاز میر، الوداع۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میٹرو ون نیوز کے اینکر پرسن امتیاز میر دوران علاج نجی ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ امتیاز میر نام ہے بہادری، شجاعت، صحافت کی علم برداری کا۔ ستمبر کو امتیاز میر دفتر سے گھر جا رہے تھے کہ ملیر کالا بورڈ کے قریب نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سوار ملزمان نے امتیاز میر پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ اس حملے میں امتیاز میر زخمی ہوئے اور نجی اسپتال میں ایک ہفتہ زندگی و موت کی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ امتیاز میر کے انتقال کی خبر سن کر صحافی برادری، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سمیت سب نے افسوس کا اظہار کیا اور امتیاز میر کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ مزمل یاسین، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ میٹرو ون نیوز کے سینئر اینکر امتیاز میر اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ایک سینئر صحافی جو اب ہمیں رلا کر چلے گئے ہیں، ان اہل خانہ کے اس وقت ان کے ساتھ ہم دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امتیاز میر، صحافت کا ایک اور روشن چراغ بجھ گیا۔ اردو، انگریزی اور سندھی صحافت میں یکساں مہارت سے ٹی وی شوز کرنے والا منفرد اور کونا مشق صحافی اب ہم میں نہیں رہا۔ فائیو نیوز اور میٹرو ون نیوز کے پلیٹ فارم سے عالمگیر شہرت حاصل کرنے والے امتیاز میر ایک خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ خوش لباس، خوش گفتار اور اپنے شعبے کے ساتھ ہمیشہ دیانتدار رہنے والے امتیاز میر بین الاقوامی امور پر خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ فائیو نیوز پر ان کا شو گلوبل لینس ہو، میٹرو ون نیوز پر آج کی بات یا جواب کھپے، امتیاز میر ہر چینل پر ہر زبان میں پاکستان اور پاکستان کے مفاد کو اولین ترجیح دیتے نظر آتے تھے۔ وہ دفتر سے اپنے پیشہ ورانہ فرائض ادا کر کے نکلے اور گھر کے راستے میں بے رحم قاتلوں نے اس ایماندار عامل صحافی کو اپنی اندھی گولیوں کا نشانہ بنا دیا۔ امتیاز میر کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، امتیاز میر کو انصاف دلوایا جائے، یہ آوازیں ضرور اٹھیں، مگر فرض کی راہ میں دہشت کا نشانہ بننے والے امتیاز میر کی سنوائی نہ ہو سکی۔ حکومت اور انتظامیہ بے بس نظر آئی، جبکہ صحافتی تنظیمیں صرف رسمی بیانات دیتی رہ گئیں۔ کراچی کے مقامی اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش کے بعد صحافت کا ایک اور روشن چراغ گل ہو گیا۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں۔ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ میٹرو ون نیوز کے سینئر اینکر پرسن امتیاز میر آہوں اور سسکیوں میں والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ نماز جنازہ قائد آباد میں مسجد ابو بکر صدیق میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں ہر آنکھ اشک بار دکھائی دی۔ میٹرو ون نیوز اور چینل 5 کے چیئرمین خالد آرائیں کی شرکت، اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی، ڈیپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد،
इम्तियाज़ शेख समेत सियासी समाजी रहनुमाओं और अहल खाना ने भी शिरकत की। इम्तियाज़ मीर को गुज़िश्ता इतवार की शब नामालूम मुल्ज़िमान ने फायरिंग का निशाना बनाया था। इम्तियाज़ मीर एक हफ्ते से ज़िंदगी और मौत की कशमकश में निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। कल वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिले। इम्तियाज़ मीर इंसान दोस्त शख्सियत अब हम में नहीं रहे। उनकी सीट पर मेट्रो वन न्यूज़ की टीम मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूं माहिन अंजुम। आज हम अपने साथी एंकर इम्तियाज़ मीर की याद में यहां पर जमा हुए हैं। यहां उनकी कुर्सी खाली है, लेकिन उनकी आवाज़ और उनका जज्बा हमारे दिलों में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। और नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज़ मीर। इम्तियाज़ मीर एक सहाफ़ी को नहीं, हम एक किरदार, एक पहचान को याद करने के लिए इस वक्त उनके सेट पे मौजूद हैं। दिन उनके साथ ये हादसा पेश आया, उस दिन वो बहुत खुश थे, बहुत अच्छे से उन्होंने प्रोग्राम किया था, बहुत अच्छे इंसान थे। और जिस दिन उनके साथ ये हादसा हुआ उस दिन भी बहुत अच्छे से वो मुझसे मुलाकात करके, मिल के, सबसे, हमारे डेस्क के मेंबर से मिल के अल्लाह हाफिज़ कह के यहाँ से उतरे। हमने सोचा भी नहीं था कि इम्तियाज़ मीर का वो हमारे साथ आखिरी दिन होगा, और ये भी कभी नहीं सोचा था कि ये खबर मैं न्यूज़ में पढ़ूंगी, ये कुर्सी को मैं खाली देखूंगी। हमारे सीनियर थे, हमें बहुत कुछ सिखाया, उन्होंने चीज़ों पे बताते थे, ऐसा नहीं ऐसे कर लो, ज़िंदगी जीने वाला शख्स था। इम्तियाज़ मीर एक बहुत अच्छे इंसान, इंसानियत दोस्त शख्सियत, इंसानियत की कदर करने वाले, इंसानियत की बात करने वाले। इम्तियाज़ मीर की अगर बात की जाए तो इम्तियाज़ मीर एक दोस्त, बहुत अच्छे जो है वो सीनियर थे। बिल्कुल बच्चों की तरह हम लोगों को चीज़ें सिखाया करते थे, बिल्कुल बच्चों की तरह हमें ये बताते थे कि अब आपने क्या करना है, किस तरह से चीज़ें लर्न करनी है। बहुत अच्छा टाइम उनके साथ गुजरा। देखें दरलिश, उस वक्त का रिएक्शन तो आपको नहीं बताया जा सकता। ऑब्वियसली एक उनके साथ अच्छा टाइम गुजारा, एक अच्छी एप्लीकेशन रही मेट्रो के अलावा भी उनके साथ। भी जो 21 सितंबर की रात थी, उस दिन भी हम लोग की हालत ये थी कि अचानक से ये खबर दी गई कि वो अपना प्रोग्राम करके यहाँ से निकले हैं और उनके साथ ये हादसा पेश आया। और पूरे एक हफ्ते के बाद जो है वो हम में से जो है वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए और हम लोगों को छोड़ के जो है वो चले गए। जैसा कि आपने देखा, हमारे कुलीग अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मेट्रो वन न्यूज़ का हर फर्द अफसुर्दा है इस खबर से। अलविदा इम्तियाज़ मीर। अलविदा इम्तियाज़ मीर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मज़ीद आपको बताएंगे, मेट्रो वन न्यूज़ के एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। चेहरे पर लगने वाली गोली इम्तियाज़ मीर के लिए जानलेवा साबित हुई है। इम्तियाज़ मीर के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गोलियों के निशानात पाए गए थे। इम्तियाज़ मीर को सीने, चेहरे और बाजू पर गोलियां लगी हैं। पोस्टमार्टम के दौरान इम्तियाज़ मीर के जिस्म से एक गोली का सिक्का निकाला गया। सीनियर
सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर के इंतकाल पर सहाफ़ती बिरादरी और हुकूमती शख्सियात की जानिब से इजहार अफसोस किया जा रहा है, जबकि चेयरमैन कैप और COO मेट्रो 1 न्यूज़ और 5 न्यूज़ खालिद आराई समेत सहाफ़ती और हुकूमती हलकों की जानिब से भी इजहार अफसोस किया जा रहा है। मेट्रो 1 न्यूज़ की पूरी टीम का मरहूम के इंतकाल पर दिली अफसोस का इजहार। इम्तियाज़ मीर की सहाफ़ती खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा, जबकि वफाकी वज़रा और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स और सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से भी ताज़ियती पैगामात मौसूल। खबर शामिल करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो का सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और इनके अहल खाना को सब्र जमील अता करे। आपको बता रहे हैं वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो ने सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और उनके अहल खाना को सब्र जमील अता फरमाए। और अब खबर शामिल करें कि अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। इम्तियाज़ मीर बहादुर और अवाम दोस्त सहाफ़ी थे, हमेशा हक और सच के साथ खड़े रहे। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इम्तियाज़ मीर पर हमले के जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार करे, जबकि सिंध हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। इम्तियाज़ मीर पर हमला आज़ादी सहाफ़त पर बराह रास्त हमला है। दुख की घड़ी में मरहूम के अहल खाना और सहाफ़ती बिरादरी के साथ हैं। अल्लाह ताला इम्तियाज़ मीर को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और लावाहिक़ीन को सब्र जमील अता करे। सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर के इंतकाल के हवाले से मज़ीद खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे हुकूमत सिंध सहाफ़ियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा इम्तियाज़ मीर पर हमले के ज़िम्मेदार अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। हुकूमत सिंध इम्तियाज़ मीर पर हमले में मुलव्वस मुल्ज़िमान को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। स्पीकर सिंध असेंबली सैयद उवैस कादर शाह, सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, जबकि वज़ीर एक्साइज सिंध मुकेश कुमार चावला, GDA रहनुमा सायरा बानो और मेयर कराची का सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर के इंतकाल पर इजहार अफसोस, लावाहिक़ीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा इम्तियाज़ मीर के इंतकाल पर दिल अफसुर्दा हो गया, जबकि इम्तियाज़ मीर की सहाफ़ती खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मरहूम इम्तियाज़ मीर की मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर के इंतकाल पर शाज़िया मरी का इजहार ताज़ियत। कहा शाज़िया मरी, कहा मुश्किल की इस घड़ी में अहल खाना के दुख में बराबर के शरीक हूँ। इम्तियाज़ मीर की सहाफ़ती खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला से इम्तियाज़ मीर की मग़फ़िरत और दरजात की बुलंदी के लिए दुआ गो हूँ। आपको बताएंगे सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर के इंतकाल पर शाज़िया मरी का इजहार ताज़ियत। शाज़िया मरी का लवाहिकीन से अफसोस और हमदर्दी का इजहार। कहा मुश्किल की इस घड़ी में अहल खाना के दुख में बराबर की शरीक हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है इम्तियाज़ मीर की मग़फ़िरत और दरजात बुलंद हों। DG PDMA के बयान के हवाले से खबर शामिल करते चलें कि DG PDMA सलमान शाह का सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जबकि इम्तियाज़ मीर एक निडर, बहादुर और सच्चे सहाफ़ी थे। इम्तियाज़ मीर की सहाफ़त को हमेशा याद रखा जाएगा। इम्तियाज़ मीर के अहल खाना और साथियों से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करता हूँ। दुख की इस घड़ी में अहल खाना और तमाम सहाफ़ती बिरादरी के साथ हैं। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे और अहल खाना को सब्र दे।
अब आपको बताएंगे वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन के बेटे रावल शर्जील मेमन की इम्तियाज़ मीर के घर आमद हुई है। अहले खाना से ताज़ियत की है। कहा दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। मुजरिमान को गिरफ्तार करके उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। आपको बता रहे हैं वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन के बेटे रावल शर्जील इनाम मेमन की इम्तियाज़ मीर के घर आमद हुई है। अहले खाना से ताज़ियत की है। कहा दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। मुजरिमान को गिरफ्तार करके उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। आपको बता रहे हैं इम्तियाज़ मीर के इंतकाल पर शर्जील इनाम मेमन के बेटे ने गहरे दुख का इजहार किया है। कहा दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। मुजरिमान को गिरफ्तार करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नज़ीर से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा। इनाम मेमन के बेटे रावल शर्जील की जानिब से अब से कुछ देर कबल जो है वो इम्तियाज़ मीर शहीद के घर पर वो पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद अब बतौर उन्होंने आवाज टीवी के ऑनर की हैसियत से जो है वो मुलाकात की है उनकी फैमिली से, और साथ ही साथ मेट्रो टीवी के चेयरमैन खालिद दराइन से भी मुलाकात की है, और रावल शर्जील की जानिब से इम्तियाज अहले खाना से भी मुलाकात की गई है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि शहीद एंकर इम्तियाज की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हैं। रावल शर्जील और खालिद दराइन के दरमियान मुलाकात हुई। इसी दौरान रावल शर्जील ने उनके अहले खाना को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर अमीर अली चांडियो, कामरान तहरी भी मौजूद थे और उनकी जानिब से तमाम लोगों की जानिब से जो शहीद की फैमिली थी उसको तमाम यकीन दहानी कराएगी कि हर कानूनी पहलू में मेट्रो टीवी, आवाज टीवी, चैनल 5 जो है वो इनके इम्तियाज मीर के अहले खाना के साथ है और हर दुख की घड़ी में उनका साथ देंगे, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। तमाम तर यकीन दहानी आज जो है वो करवाई गई है। जी काशिफ, बताइएगा वज़ीर आला सिंध और ज़ियाउल हसन लंजार समेत बहुत से अहदेदारान ने ये नोटिस लिए थे कि इनके मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन अभी तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया मुजरिमान को। बिल्कुल, पुलिस अब तक जो SSP इन्वेस्टिगेशन है कैस खान, उनकी जानिब से अब तक मुल्जिमान का सुराग नहीं लगाया जा सका। आज नमाज जनाजा के दौरान जिस वक्त SSP मलीर पहुंचे और साथ ही साथ SSP इन्वेस्टिगेशन कैस खान भी पहुंचे तो अहले खाना की जानिब से कैस खान से ताउन करने का मना कर दिया गया। कैस खान से बातचीत भी नहीं की गई और उनको रवाना कर दिया गया। इसी वजह से क्योंकि मामले को एक हफ्ते का वक्त गुजर चुका है और उसके बाद भी अब तक जो है वो कोई खासा तहकीक नहीं की गई। जो ऑपरेशन पुलिस की जानिब से अब तक तहकीकात में चीजें बताई गई, उन्हीं चीजों को लेके इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट आगे चला है। अब तक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मौका वक़्वा, जिस जगह पर वक़्वा पेश आया है उस जगह की CCTV फुटेजेस हासिल नहीं की गई, ना ही मुल्जिमान के एक्यूरेट जो है वो स्केच बनाए गए हैं, ना ही मुल्जिमान की जो है वो ये जरूर बताया गया मुतमईन करने के लिए कि मौके की जियो फेंसिंग जो है वो करवाई गई है, जिसकी रिपोर्ट ताहाल नहीं आई है, और ना ही जो 2 9mm के कॉल मौके से मिले थे उनका फॉरेंसिक मैच करवाया गया है। ना अब तक इस तरह की कोई तहकीकात में मजीद पेशरफ्त की गई है जिससे केस को आगे बढ़ाया जा सके। अलबत्ता जो पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया था, पहले 324 का दर्ज किया गया था, जिसके बाद उसमें 788 और 302 का इंदराज कर दिया गया है, और जिसमें जो मेन मुल्जिमान हैं उनको नामजद किया गया था। जिन 6 मुल्जिमान को नामजद किया गया था, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। जी बहुत शुक्रिया, चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन के बेटे रावल शर्जील मेमन की इम्तियाज़ मीर के घर आमद हुई है। अहले खाना से ताज़ियत की। कहा दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ मौजूद हैं। मुजरिमान को गिरफ्तार करके उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। हुकूमत सिंध सहाफ़ियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत सिंध इम्तियाज़ मीर पर हमले में मुलव्वस मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं इम्तियाज़ मीर पर हमले के ज़िम्मेदार अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। आपको बता रहे हैं मेट्रो 1 न्यूज़ के सीनियर एंकर इम्तियाज़ मीर आहों और सिस्कियों में वालिदा के पहलू में सुपुर्दे खाक कर दिए गए हैं।
बुलेटिन में खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अहम खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएंगे वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की वालिदा इंतकाल कर दी गई हैं। मरहुमा गुज़िश्ता 5 साल से बीमार थी। कराची निजी अस्पताल में तवील अलालत के बाद वफात पा गई हैं। मरहुमा की मैयत नवाब शाह लंजार हाउस मुंतकिल की जाएगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की वालिदा इंतकाल कर गई हैं। मरहुमा गुज़िश्ता 5 साल से बीमार थीं। कराची निजी अस्पताल में तवील अलालत के बाद वफात पा गई हैं। मरहुमा की मैयत नवाब शाह लंजार हाउस मुंतकिल की जाएगी। तदफीन का ऐलान बाद में किया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की वालिदा इंतकाल कर गई हैं। कराची निजी अस्पताल में तवील अलालत के बाद वफात पा गई हैं। तदफीन का ऐलान बाद में किया जाएगा। मरहुमा की मैयत नवाब शाह लंजार हाउस मुंतकिल की जाएगी। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि कौन सी गीदड़ सिंगी के तहत 3 अरब रुपए खर्च कर दिए गए। सूबाई वजीर जामखान शोरो कहते हैं कि कराची के मास ट्रांसिट सख्त एतराज है, ये नहीं चलने देंगे। जो कहते थे कराची में बहुत डेवलपमेंट की, उनसे कचरा तो उठाया नहीं गया। कराची में पानी के मंसूबे की बात करते थे, वो भी उनसे नहीं हुआ। PIDCL किसी और काम के लिए बनाया गया था। जर्मनी के नई कौंसल जनरल की बल्दिया उज़्मा आमद हुई है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात की। मेयर कराची ने कौंसल जनरल को खुशामदीद कहा। पाकिस्तान और जर्मनी के ताल्लुकात दोस्ताना और तिजारती एतबार से मजबूत हैं। मेयर कराची ने कौंसल जनरल को कराची और बल्दिया उज़्मा के उमूर पर ब्रीफिंग दी। जर्मनी के कौंसल जनरल ने मेयर कराची को हैम्बर्ग आने की दावत दी है। और बुलेटिन में बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से जो कि फाइल किए जाने हैं। आपको बताते चलें कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी न करने का ऐलान कर दिया। एलामिया के मुताबिक टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी नहीं होगी। शदीद मजबूरी की सूरत में कमेटी की मंजूरी से टैक्स दहिंदगान ज्यादा से ज्यादा 15 रोज की तौसी हासिल कर सकते हैं। मजीद आपको बताएंगे चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी की इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा करवाने की तारीख में तौसी की अपील। कहा, पाकिस्तान के बेशतर शहरों में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से कारोबारी निज़ाम मुतासिर हुआ है। मौजूदा सूरत हाल में बर वक्त इनकम टैक्स फाइलिंग मुमकिन नहीं। नए टैक्स प्रोसीजर के हवाले से टैक्स दहिंदगान उलझन का शिकार हैं। उन इनकम टैक्स फाइलिंग की तारीख में तौसी से कारोबारी बरादरी के लिए सहूलत होगी। और यहाँ पे आपको अहम खबर दे रहे हैं कि अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू ने शोकोस नोटिस का जवाब जमा करा दिया है। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज मुजम्मिल यासीन से। मुजम्मिल यासीन, अपडेट करवाइएगा। देखिए, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू ने शोकोस नोटिस का जवाब जमा करवा दिया। खुसूसी अदालत अलाउंस, जुडिशल अलाउंस और यूटिलिटी अलाउंस की अदायगी रोकने का हुक्म। वजारत कानून और इंसाफ 19 अगस्त 2025 को मेमोरेंडम जारी किया। वजारत खजाना का खत 5 सितंबर 2025 को AGPR कराची को मौसूल हुआ। इसमें जो शोकोस नोटिस में जो जवाब जमा करवाया गया है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इस्लामाबाद का खत 15 सितंबर 2025 को जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला ज़ेर समाअत है, हतमी फैसला आना बाकी है। अदालती अलाउंस की अदायगियाँ फिलहाल रोक दी गई हैं। वजाहत के बाद बाली मुमकिन है। 1 अक्टूबर 2025 के पहले हफ्ते में तनख्वाहों की मद में रकम ट्रांसफर करने का फैसला किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल यासीन अपडेट कर रहे थे कि अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू ने शोकोस नोटिस का जवाब जमा करा दिया। खुसूसी अदालती अलाउंस, जुडिशल अलाउंस और यूटिलिटी अलाउंस की अदायगी रोकने का हुक्म जारी हो चुका है। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में औलाद के सामने बेदर्दी से वालिद के कत्ल का वाकया। मकतूल फैसलाबाद का रिहायशी मौलम और 2 बच्चों का बाप था। मकतूल मोहम्मद सज्जाद के कत्ल का मुकदमा सुसर की मुद्दत में दर्ज किया गया था। मुकदमे में कत्ल और डकैती की दफात शामिल की गई हैं। मुलजिमान ने असलहे के जोर पर मेरे दामाद से मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की। मोबाइल फ़ोन ना देने और दामाद की मुज़ाहमत पर मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया।
और खबर शामिल करें कि मंगोपीर खैराबाद में लड़ाई झगड़े के दौरान फायरिंग सिक्योरिटी गार्ड जख्मी, जबकि सिक्योरिटी गार्ड को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से सिक्योरिटी गार्ड से छीना हुआ असलहा भी बरामद कर लिया गया, जबकि पुलिस के मुताबिक दुकान पर आए हुए गाहक ने सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीनकर सिक्योरिटी गार्ड पर ही फायरिंग की। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड टूटने का सिलसिला बरकरार है। 100 इंडेक्स 1,63,000 पॉइंट्स की हद भी उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,63,236 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। फलकनाज बिल्डर एंड डेवलपर्स की जानिब से सरजानी टाउन सेक्टर 11C में फलकनाज हिलव्यू के नाम से एक नए प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। फलकनाज बिल्डर एंड डेवलपर्स की जानिब से सुजानी टाउन के सेक्टर 11C में सरसब्ज पहाड़ों की ओट में हिल व्यू के नाम से एक नए प्रोजेक्ट के इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। अतराफ में खूबसूरत सरसब्ज पहाड़ी सिलसिले ने प्रोजेक्ट को 4 चांद लगा दिया है। इस मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद ने नए प्रोजेक्ट के मुतालिक मालूमात हासिल की और अपनी भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। मेट्रो न्यूज से फलकनाज के रूह रवां फैयाज इलियास का कहना था कि हिलव्यू प्रोजेक्ट को मुतवसत तबके की मुआशी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए प्लानिंग की गई है। माजी में जिस तरह से फलकनाज ने बेतहाशा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए और उसकी जो मुकम्मल करके तामीरात करके, और हज़ारों ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको आज मुतमईन क्लाइंट्स हैं जिनको प्रोजेक्ट्स हमने हैंड ओवर किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन समझ लें कि 50 साल की आज एक पूरी लेगेसी है कि जो फलकनाज ग्रुप शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ में काम कर रहा है। आज जैसा कि हम खड़े हैं यहाँ पे सुजानी टाउन में, सुजानी टाउन के सेक्टर 11C में, जहाँ पे प्रोजेक्ट फलकनाज हिल्स व्यू का हमने लॉन्च किया है। इससे पहले हम यहाँ पे फलकनाज वंडर सिटी फेज़ 1, 2, 3 पे हम काम कर चुके हैं और वहाँ डेवलपमेंट का काम बड़ी तेज़ी से जारी है। और वहाँ पे हमारे प्लान में ये है कि फलकनाज वंडर सिटी के जो फेजेस हैं वो आमतौर पे एक बड़ी एक सोच है लोगों की बिल्डर्स के हवाले से या डेवलपर्स के हवाले से कि प्रोजेक्ट डिले होते हैं, लेकिन हमारे इस वक्त टारगेट है कि उस प्रोजेक्ट को हम बिफोर टाइम डेवलप करें। कंप्लीट डेवलपमेंट का काम वहाँ पे जारी है विद मुकम्मल यूटिलिटीज़ के साथ। हमारा प्लान है कि उसको हम टाइम से पहले उसको लोगों को हैंड ओवर करें। फलकनाज के हेड ऑफ मार्केटिंग फराज नसीम का कहना था कि 4 बरस के बाद हिल व्यू प्रोजेक्ट की पोजीशन मालकान को दी जाएगी। फलकनाज हिल्स व्यू का आज ग्रैंड लॉन्च है और 80 और 120 गज के रिहायशी प्लॉट्स हमने अनाउंस किए हैं। बहुत ही आसान माना एक साथ पे 50 इयर्स की फलकनाज की लेगेसी है। सैकड़ों खानदान जो है वो रिहाइश पजीर हैं, लोगों को पोजीशन हमने दी है। उसके बाद एक हिल्स व्यू ये सुरजानी में हमने अनाउंस किया है, जिसका कंस्ट्रक्शन का काम भी आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी से जारी है। आज ग्रैंड लॉन्च है, फैमिली फेस्टिवल है। फैमिलीज़ का लोगों का जो आना है वो इस बात की अक्कासी करता है कि लोगों का एतमाद जो है वो हम पे कितना ज़्यादा है, और लोग बुकिंग्स भी करवा रहे हैं। और आज पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है, वो भी देखने लोग आए हुए हैं। इफ्तिताही तकरीब में शरीक दीगर मेहमानों में महमूद और अंजुमन आराई के सदर मेजर रिटायर्ड बशीर आराई ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि फलकनाज की इस तकरीब में आए हैं, ये देखने आए कि जो इतनी बड़ी अच्छी कंपनी है कराची के रेजिडेंट्स को इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट दे रहे हैं, हमें भी उसमें शामिल होना चाहिए। आज हम फलकनाज का जो प्रोग्राम आया वो आया है, प्रोजेक्ट आया है हिल व्यू, यहाँ मौजूद है। आज तक फैयाज इलियास भाई ने और उनके भाइयों ने जितने भी प्रोजेक्ट दिए हैं माशाल्लाह वो काबिल फ़ख्र हैं और उनकी तामीरात बहुत अच्छी होती है। एक बात इनमें सबसे अच्छी है कि जो कमिट करते हैं उसको पूरा करते हैं। हिलव्यू प्रोजेक्ट के इफ्तिताही के मौके पर इंतजामिया ने साइट पर आने वाले शहरियों और उनके बच्चों के लिए झूले तफरी तबाह के लिए मौजूद थे, जहाँ बच्चे भरपूर तरीके से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। और साथ ही पाकिस्तान और इंडिया के फाइनल मैच को देखने के लिए बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गई थी, जहाँ तमाम मेहमान मैच से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ लजीज खानों से भी लुत्फ अंदोज हुए। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ बिलाल एहसन, मेट्रो न्यूज़ कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।